So hello everyone, welcome to iQuanta. I believe that you guys are doing really good, you guys are fine and you guys are studying really hard because the CLAT 2026 exam is now approaching very much near, and this is the time when the final push is needed the most, as I believe only 35 to 40 days are now left for the CLAT 2026 exam. So we need to ensure that we are covering each and every important topic of all the subjects, right? And keeping the same thing in mind, we are gonna cover the most important legal current affairs from the month of October, and these current affairs, you can bet me on this, are gonna show up in your exam 110%. These are so much important topics for your CLAT exam. So what I just want from you is that you guys are, physically and mentally present here with me during this session, and just try to, analyze that why these passages are important, the principle behind those passages, even the relevance of that topic, right? And we are gonna, just cover the three most important current affairs from the month of October, right? So keeping the same thing in mind, the first topic is justice delayed is justice denied. It is a statement made by Supreme Court of India, where the Supreme Court is also saying that 8.8 lakh pending execution petitions are there. 8.8 lakh pending petitions, execution petitions, students. So not petitions. Which type of petition? Execution petitions. So now we need to understand what exactly is execution petition, why the Supreme Court is making this statement, and what is the context behind this, what is the thought of Supreme Court behind this, and why it is important for CLAT. Then we are going to solve a passage based question upon this topic, and then we are going to solve 6 MCQs based on that passage, right? So we are going to keep this flow, and with this, let's start our discussion. So students, the Supreme Court of India recently expressed serious concerns over the massive backlog of execution petitions pending before district and subordinate courts. ठीक है? तो स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये एक्सप्रेस किया है, क्या एक्सप्रेस किया है? बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न. किस चीज़ का कंसर्न? ओवर मैसिव बैकलॉग ऑफ एग्जीक्यूशन पिटिशंस. ठीक है? एग्जीक्यूशन पिटिशंस जो कहाँ पेंडिंग है? डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में. ठीक है? तो पहले हमें यह समझना होगा एग्जीक्यूशन पिटीशन क्या होती है. ठीक है? देन एग्जीक्यूशन पिटीशन इज द स्टेज वेयर अ डिक्री, court order, judgment is actually implemented or it is being enforced, right students? So basically, if I have to explain you this execution petition in a layman language, I will say दैट जब भी आप सिविल कोर्ट से कोई डिसीजन आता है ना, जब भी सिविल कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है, उसकी सारी केस के जो ट्रायल्स जब एंड होते हैं, उसके बाद जब डिसीजन आता है ना, तो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी आपको फिर से कोर्ट में जाना होता है. उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन पिटीशन. तो नाम से ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एग्जीक्यूशन पिटीशन का मेनली मतलब क्या है. कि कोर्ट में मान लीजिए ए और बी, देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी. ठीक है? ए ने बी की जमीन पे कब्जा कर रखा था, बट 2012 में सपोज जो मतलब बी ने ये फिर केस कोर्ट में फाइल किया कि ए ने उसकी ज़मीन पे एक अवैध कब्जा कर रखा है, और कोर्ट ने ये रूल किया कि ए को वो ज़मीन खाली करनी होगी और बी के लिए छोड़नी होगी, और बी का उस लैंड पर फुल फ्लेश्ड कंट्रोल है. ठीक है? तो एक चीज़ तो हुई कि कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया. अब इस डिसीजन के बाद आपको फिर से कोर्ट में जाना होता है एक एग्जीक्यूशन डिक्री लेकर, एग्जीक्यूशन का डिसीजन लेने के लिए कि सर आपने मेरे को ये डिसीजन दिया था, अब प्लीज़ इस डिसीजन को एग्जीक्यूट कराइए और मेरे को मेरी ज़मीन दिलवाइए. तो एग्जैक्टली उसी एग्जीक्यूशन पिटीशन की बात हो रही है. कि यानी कि स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट टेल यू दिस इन वेरी मच इजी टोन कि 8.8 लाख केसेस जो ये पेंडिंग दिखा रहे हैं ना, एग्जीक्यूशन पिटीशन पेंडिंग है, ये 8.8 लाख वो केसेस हैं जिन पे कोर्ट ने डिसीजन ऑलरेडी दे रखा है, जजमेंट दे चुकी है कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, यानी कि कोर्ट की साइड से अभी वो केस क्लोज हो चुका है. ठीक है? बट स्टिल उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है. ठीक है? तो इजी लैंग्वेज में प्लीज आप ये चीज को समझो कि एग्जीक्यूशन पिटीशन मींस कि जब आपका डिसीजन आ जाता है कोर्ट से, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूशन डिक्री लेके जाते हो कोर्ट में. ठीक है? तो वहीं यहाँ पे एग्जीक्यूशन पिटीशन की बात हो रही है. ठीक है? कि 8.8 लाख केसेस पे डिसीजन कोर्ट का आ चुका है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि इसका क्या इसकी रूलिंग होनी चाहिए, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही. ठीक है? तो एग्जैक्टली द सेम थिंग इज बीइंग मेंशन्ड हियर, दैट एग्जीक्यूशन पिटीशन is equals to the stage where a decree, court order, decree क्या होती है? It can be an order or it can be a judgment as well, is actually implemented or enforced. ठीक है? It is actually being implemented or
एनफोर्स्ड, राइट। तो कितने केसेस पेंडिंग है? ओवर 8.82 लाख एग्जीक्यूशन पिटिशंस आर स्टिल पेंडिंग नेशन वाइड, सम फॉर मोर देन अ डिकेड। मतलब आप देख रहे हो 10 साल से भी ज्यादा के कुछ ऐसे केसेस पेंडिंग है जिन पे डिसीजन आ चुका है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था ए और बी वाले एग्जाम्पल में कि जो ए ने बी की जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है वो उसे छोड़ना होगा और बी को उसकी लैंड पे पूरा कंट्रोल मिलेगा, राइट। तो सपोज कोर्ट ने डिसीजन 2012 में दे दिया, आज 2025 चल रहा है, अभी तक उसने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो यानी कि कोर्ट का डिसीजन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। सिमिलरली उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि उस तरीके के 8.8 लाख केसेस पेंडिंग है अभी भी, राइट। सो द कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिले एट द एग्जीक्यूशन स्टेज डिफीट्स द पर्पस ऑफ लिटिगेशन इटसेल्फ। एग्जैक्टली कोर्ट ने बहुत सही ऑब्जर्व किया है कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, कोर्ट कब डिसीजन देती है? प्रॉपर ट्रायल होती है, एविडेंसेस आते हैं, उसके प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं और इन सब प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद कोर्ट एक कंक्लूसिव डिसीजन पे आता है। तो कोर्ट ने वही कहा है कि भाई हम कंक्लूसिव डिसीजन दे रहे हैं, अगर वो उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रहा है तो इट इज डिफीटिंग द पर्पस ऑफ लिटिगेशन इटसेल्फ। तो हम लिटिगेशन कर किस लिए रहे हैं? यहाँ पे वो पार्टी आई क्यों थी? वो पार्टी आई थी जस्टिस लेने के लिए, हमने उसको जस्टिस दे दिया इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट। लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा है तो फिर रियल जस्टिस कहाँ हुआ है? हुआ ही नहीं है जस्टिस, राइट। सो ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। देन let's try to understand what is an execution petition, though we have already discussed it just few minutes ago, but थोड़ा सा properly समझ लेते हैं, ठीक है। तो after a civil court passes a decree, ठीक है, डिक्री आपको भी पता है हुआ डिसीजन, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर पोजीशन, रिकवरी ऑफ मनी या फिर इंजंक्शन। तो डिक्री में जैसे कि क्या है, पोजीशन की डिक्री आ सकती है कि जैसे मैंने आपको भी लैंड वाला बताया था कि ए की एक लैंड थी जिसपे बी का पोजीशन था, ठीक है। ये मतलब सब बी की लैंड थी जिसपे ए का पोजीशन था, मतलब बी की लैंड पे ए ने अवैध कब्जा कर रखा था। तो उसमें कोर्ट हो सकता है एक ऐसी डिक्री फाइल कर दे, ऐसी एक डिक्री पास कर दे कि इस लैंड का पोजीशन वापस से ए से बी को दिया जाएगा जो उसका रियल ओनर है, ठीक है। तो हो सकता है वो पोजीशन की डिक्री हो सकती है, रिकवरी ऑफ मनी की डिक्री हो सकती है कि किसी ने ए ने बी के पैसे ले लिए लेकिन उसे लौटाल नहीं रहा है, तो कोर्ट एक डिक्री रिकवरी ऑफ मनी की भी फिर पास कर सकता है कि ए को बी के पैसे लौटालने होंगे, ठीक है। देन इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इंजंक्शन, द डिक्री होल्डर मस्ट अप्रोच द सेम और कॉम्पिटेंट कोर्ट टू एग्जीक्यूट दैट डिक्री, राइट स्टूडेंट्स। सो जो डिक्री होल्डर होता है ना, यानी कि जिसको वो डिसीजन मिला है, जिसके फेवर में वो डिसीजन आया है, ठीक है, उसको फिर से दोबारा उसी कोर्ट में जहां से उसको डिसीजन मिला या फिर उसी के कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि जिसका ज्यूरिसडिक्शन उसी के बराबर और जिस कोर्ट से उसको डिसीजन मिला था, वहां दोबारा जाना होगा। किस लिए जाना होगा? टू एग्जीक्यूट दैट डिक्री, उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए। देन इट इज गवर्न्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द रीजन दैट वी आर डूइंग दीज लीगल करंट अफेयर्स, बिकॉज सिर्फ पैसेज करने से कुछ नहीं होता। यस, पैसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट डायरेक्ट पैसेज नहीं करना चाहिए। हम लोग जिस टॉपिक का पैसेज कर रहे हैं उसका एक हमें ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। सो जस्ट टू एंश्योर दैट वी हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑल दिस, ये चल क्या रहा है, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं जितना हमारे लिए क्लैट रेलेवेंट है, फिर हम पैसेज भी सॉल्व करेंगे, राइट। सो इट इज गवर्न्ड बाय ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ऑर्डर 21, ठीक है। तो प्लीज स्टूडेंट्स ये सब आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इट इज गवर्न्ड बाय ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी, ठीक है। सीपीसी अभी भी वैसी ही चलती है, सीआरपीसी आईपीसी वगैरह चेंज हो गए, दैट इज बीएनएस बीएनएसएस एंड एविडेंस एक्ट ऑल्सो, बट सीपीसी आज भी हमारी 1908 वाली ही चल रही है, ठीक है। देन the process ensures that a right recognized by the court is effectively realized in reality। इसका मतलब इस प्रोसेस का सिर्फ मतलब इस प्रोसेस का पर्पस क्या है? इस प्रोसेस का ये पर्पस है कि कोर्ट ने अगर कोई जस्टिस दिया है, कोर्ट ने अगर किसी का कोई राइट रिकॉग्नाइज किया है और उसको जस्टिस देने के लिए कोई डिक्री पास करी है या कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, तो वो जो डिसीजन दिया है वो एटलीस्ट इफेक्टिवली ग्राउंड पे भी तो आए ना। ऐसा नहीं कि कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ठीक है, ए का जो पोजीशन है बी की लैंड में वो छोड़ना होगा, सिर्फ बोल देने से तो नहीं छोड़ेगा ए, उसको एग्जीक्यूट भी कराना होगा ना। तो दिस इज द सेम थिंग कि जो एग्जीक्यूशन पिटीशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि जो कोर्ट ने एक राइट रिकॉग्नाइज किया है किसी पार्टी का, वो इफेक्टिवली रियलिटी में भी एग्जीक्यूट हो, ठीक है। देन नॉन एग्जीक्यूशन इज इक्वल्स टू जस्ट जस्टिस इन थ्योरी। अगर वो मतलब एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रहा है किसी डिक्री का, कोर्ट के किसी डिसीजन का, तो फिर वो तो सिर्फ थ्योरी में जस्टिस है ना, कि हाँ मतलब हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया, जैसे अभी हम लोग सब पढ़ रहे हैं, जस्टिस
ठीक है, एंड अपना एग्जीक्यूशन, डिक्री, ये सब अभी हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं। बट अगर वो रियलिटी में ही नहीं मिल पा रहा है, वो कोर्ट ने जो डिसीजन, एक अच्छा सा डिसीजन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ फिर वो खुशी और वो सब अच्छा अच्छा सिर्फ थ्योरी पे है ना, ग्राउंड पे क्या है। ठीक है, तो ये होता है एग्जीक्यूशन पिटीशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। देन सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कंसर्न है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ऑफ अ सडन क्यों इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, या क्यों इस तरीके की एक डिस्कशन इनिशिएट करी? ठीक है, तो द कोर्ट नोटेड दैट डिले इन एग्जीक्यूशन इरोड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना डिले होगा जस्टिस में, उतना ही ज्यादा पब्लिक का जुडिशरी से विश्वास भी हटेगा कि क्या करना वहां जाके, क्या होगा कोर्ट जाके, क्या हमको मिल जाएगा। कोई इंसाफ नहीं होता है कोर्ट में। तो पब्लिक में इस तरीके के सेंटिमेंट आते हैं अगर डिले होता है एग्जीक्यूशन में। ठीक है, एंड अभी आजकल का तो खैर जैसा माहौल है, वी ऑल नो कि थोड़ा सा जुडिशरी के प्रति पब्लिक सेंटिमेंट थोड़ा सा डगमगाया है। तो जुडिशरी का ये काम बनता है कि टू एंश्योर कि जो उनके प्रति पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो कम ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू आर द वन जिस पे लोगों को सबसे ज़्यादा विश्वास है कि उनके साथ कभी यहाँ इस कंट्री में गलत नहीं हो सकता है। बट अगर आपकी लापरवाहियों की वजह से अगर ये सिचुएशन आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट का तो कंसर्न बनता है ना, राइट? तो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट सुप्रीम कोर्ट बट जुडिशरी एज अ होल। अकेले सुप्रीम कोर्ट में उतने पेंडिंग एग्जीक्यूशन केसेस नहीं पेंडिंग है, सारे कोर्ट्स के मिलाकर हैं वो। ठीक है, देन द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू रेमेडी लूज मीनिंग इफ जुडिशियल डिक्रीज रिमेन अनइन्फोर्स। ठीक है, ऐसे तो फिर कोई भी कहीं जाके कब्जा कर ले, मैं आपकी आके जमीन पे कब्जा कर लूँ, मुझे तो पता है कोर्ट एक डिसीजन देगा, बाद में एग्जीक्यूशन डिक्री तो पेंडिंग में पड़ी रहेगी, ये आप मेरा कुछ कर नहीं पाओगे, तो चलो मैं आपकी लैंड पे कब्जा कर लेता हूँ। फिर तो हर कोई ऐसे करने लग जाएगा, फिर तो एनार्की आ जाएगी ना, हर कोई एक दूसरे पे कब्जा करने लग जाएगा, एक दूसरे की चीज़ें लेने लग जाएगा, और फिर सब उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, डिसीजन ले लेंगे, वो डिसीजन पेपर में रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, हम लोग राइट टू रेमेडी रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन इसका कोई अगर मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, अगर हम लोग इसको इन्फोर्स करा के नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड हाई कोर्ट्स टू फॉर्मुलेट मैकेनिज्म फॉर स्पीडी एग्जीक्यूशन इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर अनड्यू डिलेज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को और हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट किया कि आप लोग कोई ऐसा मैकेनिज्म लाओ, कोई ऐसी रेमेडी लाओ जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी ये सारी एग्जीक्यूशन डिक्रीज को एग्जीक्यूट करा पाए, राइट? ओके, देन मूविंग अहेड, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन क्या है? अब स्टूडेंट्स, मैंने ये कंटेंट को इस हिसाब से फ्रेम किया है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगे कि बोरियत हो रही है, थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, और ऐसा भी नहीं लगे कि कुछ मिस आउट हो रहा है। तो मैंने इसीलिए क्रक्स निकाला है पूरे इसका न्यूज़ का। तो अभी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस क्या क्या इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 तो देखिए सबसे बेसिक आर्टिकल है इस केस में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इट इंक्लूड्स द राइट टू स्पीडी जस्टिस एज वेल, राइट टू स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये सब ऑलरेडी आर्टिकल 21 में प्री इंक्लूडेड है। ठीक है, देन आर्टिकल 32 to 26, it talks about what? It talks about constitutional remedies. तो right to constitutional remedies meaningless unless decrees can be enforced. अगर कोर्ट की डिक्रीज ही नहीं इन्फोर्स होंगी तो फिर हमारा मैंडेमस हो गया, सर्शियोरारी हो गया, हेबियस कॉर्पस हो गया, ये भी डिक्रीज हैं, ये भी किस काम की है? अगर एग्जीक्यूशन डिक्री भी ऐसे पेंडिंग पड़ी रहेंगी तो फिर बाकी डिक्रीज से भी मतलब कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा ना, कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे वही बात हुई है। तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 भी इन्वॉल्व है। अंडर आर्टिकल 32 यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इफ एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड, एंड अंडर आर्टिकल 226 अगेन यू कैन डायरेक्टली गो टू द एनी ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इफ एनी ऑफ योर दिस फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड। ठीक, एंड आर्टिकल 226 इज बिट ब्रॉडर, फंडामेंटल राइट के अलावा का भी अगर आपका कोई लीगल राइट भी अगर वायलेट हो तो भी आप वहां जा सकते हो। आर्टिकल 32 इज जस्ट अबाउट फंडामेंटल राइट। ठीक है, कि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ही आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, देन रूल ऑफ लॉ, यस रूल ऑफ लॉ कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताइएगा। इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल रेमेडीज is equals to cornerstone of justice, right? Then doctrine of access to justice derived from the preamble's promise of justice, social, economic and political. तो our preamble को क्या कहते हैं? A very eminent jurist and Palkiwala, he mentioned that preamble is an identity card of our constitution, right? तो अगर हमारे preamble में ये mention है, हमारा preamble हमें promise करता है कि we'll have justice of
सोशल जस्टिस एज वेल एज इकोनॉमिकल जस्टिस एज वेल एज पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये मतलब जो क्या कहते हैं हमारा जो ये एग्जीक्यूशन पेंडिंग वाली जो एग्जीक्यूशन पेंडिंग वाला जो हमारा हम अभी केस पढ़ रहे हैं, ये इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेस टू जस्टिस ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेंशन में आ गया, फाइन। देन मूविंग अहेड, नाउ दिस इज अ पैसेज विच इज बीइंग रिलेटेड टू द सेम टॉपिक जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है, एक लीगल करंट अफेयर अभी हमने डिस्कस किया है, ये उसका पैसेज है। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग असाइड, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, रीड द पैसेज वेरी प्रॉपरली। आई एम नॉट गोना टेक अ ब्रेक कि मैं 1 मिनट के लिए बाहर हो जाऊँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो। मैं साइड हो रहा हूँ अभी, आप लोग पॉज करके आराम से देख सकते हो, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, एंड आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पैसेज राइट नाउ, फाइन। तो in a recent observation, the Supreme Court described the staggering number of 8.82 lakh pending execution petitions in Indian district courts as travesty of justice. As a travesty of justice, the court noted that a decree that remains unexecuted for years renders the entire judicial process futile and undermines the rule of law. Citing the ancient maxim of justice delayed is justice denied, the bench emphasized that rights declared by courts must be capable of enforcement in a reasonable time, failing which such rights become illusory. ठीक है? Execution petitions arise once a civil decree is passed and the successful party, the decree holder, seeks enforcement of that order. Under the Code of Civil Procedure 1908, the decree holder must approach the court to compel compliance by attachment of property, arrest of judgment debtor, or other modes. The problem, however, lies not in the law but in its implementation. Execution stages are often delayed for years due to procedural inefficiencies, frequent adjournments, and lack of digital infrastructure. The court observed that the constitutional rights to access justice implicit in Article 21 includes the right to timely enforcement of judicial orders. Delay in execution not only violates this right but also weakens public faith in the judiciary. It called upon high courts and state governments to frame guidelines to ensure that decrees are enforced and within a fixed time frame, and that accountability mechanisms are established for officers causing delay. Fine. Then the ruling reignites a fundamental debate that does justice end when a judgment is pronounced or when it is implemented. While the declaration of rights is essential, their enforcement is what translates the rule of law into lived reality. The effectiveness of any legal system depends as much on speedy enforcement as on fair adjudication. So students, this was our passage and I believe कि क्योंकि अभी हमने टॉपिक जस्ट डिस्कस ही किया है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पैसेज समझ में आ गया होगा, ये पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, क्या हो सकता है। तो ठीक है, यू जस्ट टेक योर टाइम, आई एम जस्ट गिविंग 10 मोर सेकेंड्स। आप एक बार इस पैसेज को फिर से देख लो एंड देन आफ्टर 10 सेकेंड्स वी विल बी मूविंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डिस्कस करें हम, चलिए। So students, there is a principle provided that the effectiveness of a right depends not merely on its recognition but also on its enforceability. The effectiveness of a right depends not merely on its recognition but also on its enforceability. Facts क्या कह रहे हैं students? A civil court decreed in favor of A in 2012 ordering recovery of his property. The decree remained unexecuted for over 10 years due to administrative delay. So which of the following statement aligns with the Supreme Court's recent reasoning? I have always mentioned to you students that in these types of question we are always expected to follow this. ठीक है, आपका मोरालिटी क्या कह रहा है या आपको क्या लगता है, आपके लगने पे नहीं यहाँ पे आंसर होना चाहिए। यू हैव टू स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द प्रिंसिपल, और मेरी राय मान लो आप, जब तक आप प्रिंसिपल से अपना टच बनाए रखोगे, प्रिंसिपल के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, यू आर नेवर गोइंग टू गेट रॉन्ग। ठीक है, 10 by 10 आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, बट इट नीड्स प्रिसीजन, इट नीड्स प्रैक्टिस।
तो इसीलिए हम लोग ना प्रॉपरली, मैं वो आपको एक दो क्वेश्चन में अप्रोच दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है। अभी दिस इज समथिंग कि जिसके बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, पहले अपनी पूरी प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी कैसे आप, यही क्वेश्चन होता है ना कि सर लीगल करंट अफेयर अगर आ गया तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, ये सब तो आता है, ये तो सबको आता है, ठीक है। तो जो अप्लाई कर पा रहा है ना चीज़ों को, वही असली खिलाड़ी है क्लैट में, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमने देख लिया। प्रिंसिपल बात कर रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ अ राइट डिपेंड्स नॉट मेयरली ऑन इट्स रिकॉग्निशन बट आल्सो ऑन इट्स एनफोर्सिबिलिटी। सिंपल सी बात कर रहे हैं कि किसी भी राइट की जो इफेक्टिवनेस है वो सिर्फ उसके रिकॉग्निशन में नहीं कि हाँ ये राइट एग्जिस्ट करता है, सिर्फ इसमें उसका नहीं है, बल्कि उसकी एनफोर्सिबिलिटी की, जिसको हम राइट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो एनफोर्स भी होता है या नहीं, ठीक है। अब फैक्ट्स देखिए। सो सिविल कोर्ट डिक्रीड इन फेवर ऑफ ए इन 2012 ordering recovery of his property. The decree remained unexecuted for over 10 years due to administrative delay. यानी कि एक सिविल कोर्ट ने एक डिक्री पास की थी ए के फेवर में, यानी कि ए इज द डिक्री होल्डर, ठीक है। डिक्री होल्डर मतलब जिसके फेवर में आया है जजमेंट। इन 2012 ऑर्डरिंग रिकवरी ऑफ हिज प्रॉपर्टी, द डिक्री रिमेंड अनएग्जीक्यूटेड फॉर ओवर 10 ईयर्स, 10 साल तक, मतलब जजमेंट इसके फेवर में आ गया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ जजमेंट, ठीक है, 10 साल हो गए हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अलाइंस विद द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट रीजनिंग, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया, ये क्या कह रहा है हमें समझ में आ रहा है। अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, किस ऑप्शन में ये प्रिंसिपल सबसे ज्यादा फिट बैठेगा, हम वो वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आप लोग खुद देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अलाइंस विद द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट रीजनिंग। सो ऑप्शन ए इज सेइंग दैट द डिले अमाउंट्स टू डिनायल ऑफ ए सब्सटेंटिव राइट टू प्रॉपर्टी एंड एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है, ऑप्शन ए देख लिया। देन ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सिंस द डिक्री एग्जिस्ट्स एज राइट इज फुल्ली प्रोटेक्टेड इन लॉ, ठीक है। ऑप्शन सी इज सेइंग दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिले इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न एंड ऑप्शन डी इज सेइंग ए कैन ओनली सीक डैमेजेस फ्रॉम द अपोजिट पार्टी नॉट फ्रॉम द स्टेट। फाइन। अब हमने चारों ऑप्शंस देख लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, हो सकता है व्यूअर्स में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हो जो एक बार में इसका आंसर बता पाए, बट आई एम गोना गो विद अ वेरी मॉडरेट अप्रोच कि एक अगर फर्स्ट टाइमर कभी कोई स्टूडेंट है या जिसकी अभी प्रिपरेशन फुल फ्लैश तरह से नहीं खत्म हुई है, वो कैसे सही आंसर डिटरमाइन कर रहा है, मैं वो अप्रोच आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले प्रिंसिपल देखा अच्छे से 2 बार, फैक्ट्स देख लिए, फैक्ट समझ लिए अच्छा क्या है, और ऑप्शंस देख लिए। तो सबसे पहले अगर आपको अभी भी आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो यू नीड टू यूज एलिमिनेशन मेथड। स्मार्ट एलिमिनेशन कैसे करना है आपको, स्मार्ट एंड कैलकुलेटेड एलिमिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहला तो आ रहा है कि ए कैन ओनली सीक डैमेजेस फ्रॉम द अपोजिट पार्टी नॉट फ्रॉम द स्टेट। तो पहली बात तो स्टेट ही अपोजिट पार्टी से आपको डैमेजेस दिलवाएगी, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट, इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि हाँ ये बात सच है कि ए कैन सीक डैमेजेस फ्रॉम द अपोजिट पार्टी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि नॉट फ्रॉम द स्टेट। भाई अगर अपोजिट पार्टी नहीं दे रही है कुछ तो फिर आप स्टेट से ही इन्फोर्स कराने को कहोगे ना। ये ऑप्शन तो पूरी स्टेट का रोल को हटा ही रहा है कि स्टेट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देन ऑप्शन सी देखो, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिले इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न, कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ऐसा कहीं पे भी हमने पैसेज में, न्यूज़ में कहीं पे भी ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं, गलत है बिल्कुल, साफ साफ पता ही लग रहा है। देन सिंस द डिक्री एग्जिस्ट एज राइट इज फुल्ली प्रोटेक्टेड इन लॉ, तो ये कह रहा है ऑप्शन बी कि डिक्री तो एग्जिस्ट कर रही है ना, डिसीजन तो इसके फेवर में आ गया है, तो ए के राइट फुल्ली प्रोटेक्टेड है। लेकिन अभी हमने पैसेज में क्या पढ़ा था कि अगर डिक्री एग्जिस्ट कर रही है और ए का फुल राइट फुल्ली प्रोटेक्टेड है तो ये सिर्फ थ्योरी में प्रोटेक्टेड है, कोई रियल में नहीं प्रोटेक्टेड है। जब 10 साल से एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा है तो क्या प्रोटेक्टेड है। तो इसका मतलब कि यस डिग्री एग्जिस्ट करती है, ए का राइट फुल्ली प्रोटेक्टेड है इन लॉ, लेकिन सिर्फ थ्योरी में है, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द, ये स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट रीजनिंग है, क्या इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट अलाइन कर रहा है आपके हिसाब से? अभी तक तो मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, द डिले अमाउंट्स टू डिनायल ऑफ ए सब्सटेंटिव राइट टू प्रॉपर्टी एंड एक्सेस टू जस्टिस। तो ये डिले क्या कर रहा है, ऑप्शन ए इज सेइंग दैट दिस डिले, जो 10 साल का डिले हो गया, ये अमाउंट्स टू डिनायल ऑफ ए सब्सटेंटिव राइट, यानी कि जो इतना डिले हुआ है, ये हो रहा है 10 साल से, ये ए का जो सब्सटेंटिव राइट है उसकी प्रॉपर्टी पे और उसका जो जस्टिस है उसको डिले हो रहा है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, जिसपे हमारा प्रिंसिपल पूरे अच्छे से फिट बैठ रहा है। प्रिंसिपल कह रहा है द इफेक्टिवनेस ऑफ अ राइट डिपेंड्स नॉट मियरली ऑन इट्स रीजनिंग बट ऑल्सो ऑन इट्स एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल समझ लिया। प्रिंसिपल भी यही कह रहा है कि किसी भी राइट की इफेक्टिवनेस तब तक है
जब तक उसको आप रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो और इन्फोर्स भी करा रहे हो। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि अगर डिले हो रहा है मतलब ये जो डिक्री कोर्ट ने इशू करी थी 10 साल पहले, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है तो फिर इट बेसिकली मीन्स इट इज डिनायल ऑफ ए सब्सटेंटिव राइट। कि मतलब कोर्ट मतलब कि क्या कहते हैं, कोर्ट जो है, कोर्ट मान तो रहा है कि ए का राइट है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करा रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन डिक्री नहीं फुलफिल हो पा रही। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ थ्योरी में है और ए का जो सब्सटेंटिव राइट है उसकी प्रॉपर्टी में वो डिले हो रहा है। फाइन। So correct option is the court held that unenforced decrees undermine the right itself. Delay is denial. Fine. Then question 2 students क्या कह रहा है? So there is a principle again that Article 21 it includes the right to speedy justice. Yes, it definitely includes the right to speedy justice. So the facts are saying that B files an execution petition which remains pending for 8 years. He claims violation of आर्टिकल 21। ठीक है, बी ने एक एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया, ठीक है, जो कि पेंडिंग है कम से कम 8 साल से, एंड ही क्लेम्स दैट इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो विच इज द करेक्ट लीगल पोजीशन? ठीक है, अच्छा देखो, प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आर्टिकल 21 इंक्लूड करता है राइट टू स्पीडी जस्टिस। प्रिंसिपल क्या कह रहा है? प्रिंसिपल के हिसाब से आर्टिकल 21 इट इंक्लूड्स दिस राइट टू स्पीडी जस्टिस। फैक्ट क्या कह रहा है कि बी फाइल्स एन एग्जीक्यूशन पिटीशन विच रिमेन्स पेंडिंग फॉर 8 years, ही क्लेम्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो आपके हिसाब से आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। प्रिंसिपल क्या कह रहा है? प्रिंसिपल यही कह रहा है ना कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू स्पीडी जस्टिस। अब अगर किसी को स्पीडी जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, किसी ने एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया और 8 साल तक वो पेंडिंग पड़ा, तो स्पीडी तो नहीं है, ठीक है। तो अब और हमारा क्या कह रहा है प्रिंसिपल? इट इंक्लूड्स राइट टू स्पीडी जस्टिस, ठीक है। और यहाँ पे अब ये क्लेम कर रहा है, बी क्लेम कर रहा है कि वायलेशन हुआ है आर्टिकल 21 का, तो डेफिनेटली हुआ है, प्रिंसिपल भी यही बात कर रहा है। तो अब हमें आंसर में यस ढूंढना है कि यस वाली चीज कहां पे आ रही है, ठीक है। यस मतलब कि जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करे। तो विच इज द करेक्ट लीगल पोजीशन? सो राइट टू स्पीडी जस्टिस अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल केसेस। क्या ऐसा कोई प्रिंसिपल अभी तक हमने सुना देखा? नहीं, ठीक है, चलो ये हट गया। देन delay in execution is a violation of article 21 as it affects access to civil justice. So yes, B है ऐसा जो काफी ज्यादा अलाइन कर रहा है, सारे अलाइन कर रहा है प्रिंसिपल के साथ। स्टिल एक बार हम लोग सी और डी भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज सेइंग दैट डिले इन एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कहीं कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको पता है। देन ऑप्शन डी इज सेइंग दैट ओनली द लेजिस्लेचर कैन रेमेडी सच डिलेज, नॉट द जुडिशरी। ऐसा भी कोई पॉइंट हमने नहीं पढ़ा है, तो ये भी हटेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज delay in execution is a violation of article 21 as it affects access to civil justice. Fine. Answer B, explanation is saying that Supreme Court linked procedural delay even in civil enforcement with article 21. Fine. So the question number 3, the next question is there. So the question is saying that there's a principle again that rule of law requires that judicial decision must be obeyed and enforced. ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल ऑफ लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की जो बात कर रखी है, कौन से आर्टिकल में? अंडर आर्टिकल 12, ठीक है। तो आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 इट टॉक्स अबाउट स्टेट, एंड देन आर्टिकल 13 एंड देन आर्टिकल 14 एज वेल, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो यस, आर्टिकल 14 इट टॉक्स अबाउट दिस रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी ओबेड एंड इन्फोर्स्ड। जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी ओबेड एंड इन्फोर्स्ड, ठीक है। फैक्ट्स कह रहे हैं द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डिक्री अगेंस्ट इट फॉर 5 years, ठीक है। द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डिक्री, यानी कि स्टेट यहां पे कौन है? स्टेट मींस जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी संस्थाएं इंक्लूडेड हैं, ठीक है, कौन कौन? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, देन आपका इवन जुडिशरी व्हेन इट इज वर्किंग इन कैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जब काम कर रही है, ठीक है। देन आपकी PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, आपके जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, LIC हो गया, NTPC हो गया। तो इस टाइप से एक स्टेट की काफ़ी ब्रॉड मीनिंग दे रखी है आर्टिकल 12 में। तो अंडर दैट आर्टिकल 12 की स्टेट की डेफिनेशन के अंडर जो भी आती हैं संस्थाएं, वो सब यहाँ पे बात हो रखी, ठीक है। द स्टेट, तो स्टेट मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं, जो स्टेट अंडर आर्टिकल 12 मेंशन्ड है। तो द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डिक्री अगेंस्ट इट फॉर 5 years. सो विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इज मोस्ट डायरेक्टली वायलेटेड?
विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। तो फेडरल सुप्रीमेसी जो हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो मतलब गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ यूनियन एंड फेडरल, ठीक है। फेडरल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है। हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से नीचे भी पंचायत म्यूनिसिपैलिटी, सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। इसको कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल सुप्रीमेसी की बात कर रहा है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इज मोस्ट डायरेक्टली वायलेटेड, तो ऑब्वियसली फेडरल सुप्रीमेसी की बात ही नहीं हो रही है। देन जुडिशियल रिव्यू, उसका भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, की पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, उसका इससे कोई रिलेवेंस नहीं है। तो कौन सा बचा, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो अगर कोई स्टेट कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, उसके खिलाफ कोई डिक्री आई है कोर्ट से और 5 साल से वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करा रहा है, तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ व्हाट, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। फाइन। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे अच्छे से। तो आंसर बी, एक्सप्लेनेशन इज सेइंग दैट नॉन कंप्लायंस विथ कोर्ट ऑर्डर्स बाय द स्टेट violates equality before law and rule of law. Fine. Then the next question is, again a principle is provided and the principle is saying that a legal system that recognizes rights but fails to provide an effective remedy is inconsistent with the idea of justice. ठीक है, प्रिंसिपल ये कह रहा है कि कोई भी लीगल सिस्टम जो रिकॉग्नाइज कर रहा है राइट्स, लेकिन क्या कहाँ पे फेलियर हो रही है, टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडी, ठीक है। मतलब वही जो पैसेज में बात कर रखी है कि हमने राइट तो रिकॉग्नाइज कर लिया है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज इनकंसिस्टेंट विद द आइडिया ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस तो कंप्लीट तभी होगा ना जब उसके फेवर में डिसीजन आएगा और वो एग्जीक्यूट भी होगा। सिर्फ डिसीजन आ जाने से उसके फेवर में उसको थ्योरी में जस्टिस मिला, नॉट इन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो प्रिंसिपल भी वही बात कर रहा है कि अ लीगल सिस्टम दैट रिकॉग्नाइजेस राइट्स but fails to provide an effective remedy is inconsistent with the idea of justice. तो facts क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, C obtains a decree for compensation but cannot execute it due to backlog in courts, ठीक है। अभी C फैक्ट में ये बात हुई है कि C is a party who has obtained a decree for compensation but cannot execute it due to backlog in courts, ठीक है। कि मतलब डिक्री तो उसके फेवर में आ गई, डिक्री होल्डर तो वो बन गया है, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहा क्योंकि कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा बैकलॉग ऑर्डर्स हैं। तो विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सिक्वेंस, कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इस कॉन्सिक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इज सेइंग दैट सीज लीगल राइट इज थ्योरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल. Option B is saying that the decree remains valid, so there is no injustice. Option C is saying that C must file a fresh suit to reclaim the amount. Option D is saying that justice delay does not affect justice. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन बी तो सीधा सीधा कह रहा है कि डिक्री वैलिड है लेकिन देयर इज नो इनजस्टिस. तो क्या यहाँ पे इनजस्टिस नहीं हुआ है? हम लोग तब से यही देख रहे हैं कि अगर कोई डिक्री इशू हो गई है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है तो भी वहाँ पे कोई जस्टिस नहीं हुआ है, वो इनजस्टिस ही है अभी भी. ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी का तो पूरा मतलब गलती है. देन ऑप्शन सी इज सेइंग दैट सी मस्ट फाइल अ फ्रेश सूट टू रिक्लेम द अमाउंट. ऐसा भी कुछ नहीं है. हाँ, फ्रेश सूट नहीं फाइल करना होता है, सिर्फ एग्जीक्यूशन डिक्री आपको इशू कराने के लिए दोबारा कोर्ट के पास जाना होता है. दोबारा से ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको फिर से पूरा नया सूट फाइल करना पड़ रहा है. देन ऑप्शन डी इज सेइंग जुडिशियल डिले डज नॉट अफेक्ट जस्टिस. ऐसा भी कुछ नहीं है. हाँ, बार बार यही बोल रहा है कि जुडिशियल डिले इज अ कंप्लीट डिले ऑफ जस्टिस, राइट. तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि सीज लीगल राइट इज थ्योरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल. कि सी का लीगल राइट को आपने थ्योरेटिकली तो मान लिया कि हाँ सी का लीगल राइट है, लेकिन वो प्रैक्टिकली तभी माना जाएगा जब आप उसको एग्जीक्यूट करा पाओगे. फाइन. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टूडेंट्स. एक्सप्लेनेशन भी वही करिए. राइट विदाउट रेमेडीज आर मीनिंगलेस, द डिक्री बिकम्स इल्यूजरी. इल्यूजरी मतलब कि इमेजिनरी, कि बस हाँ आपकी इल्यूजन में आपको जस्टिस मिल गया, रियल में कुछ नहीं मिला है. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, again a principle is provided. The principle is saying that the judiciary is duty bound to ensure not only fair adjudication but also effective enforcement. Facts are saying that the Supreme Court directs High Court to monitor execution delays. ठीक है. फैक्ट्स क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि आप सारे के सारे एग्जीक्यूशन डिलेस को मॉनिटर करो और देखो कि क्यों ये इतना डिले हो रहा है. फाइन. तो द फैक्ट्स आर सेइंग दैट द सुप्रीम फैक्ट्स हो गया. फिर ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट. सो सच डायरेक्शन एक्सीड्स जुडिशियल पावर. It is a part of the court's constitutional obligation to secure justice under Article 21. Then option C is saying that only Parliament can frame procedural reforms, or option D is saying that high courts cannot supervise subordinate courts. ठीक है.
तो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? तो फिर से देखते हैं क्या हो रहा है। द जुडिशरी इज ड्यूटी बाउंड टू इंश्योर नॉट ओनली फेयर एडजुडिकेशन बट ऑल्सो इफेक्टिव इन्फोर्समेंट। ठीक है, जुडिशरी का काम ही यही है, जुडिशरी इज ड्यूटी बाउंड है किस चीज के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि फेयर एडजुडिकेशन हो, यानी कि फेयर डिसीजन आए, प्लस उसका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट भी हो। फैक्ट ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया हाई कोर्ट को कि वो मॉनिटर करे एग्जीक्यूशन डिलेस। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इनमें से सेंटेंस क्या होगा? ठीक है, तो ऐसा डायरेक्शन क्या कोई जुडिशियल पावर एक्सीड करता है? ऑब्वियसली नो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, वो सबको वो अब उसके अंडर जितने कोर्ट्स आते हैं उनको वो डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देन ऑप्शन बी इज सेइंग इट इज पार्ट ऑफ द कोर्ट्स constitutional obligations to secure justice under article 21. yes, this sentence is correct. तब भी हम सी डी देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज सेइंग दैट ओनली पार्लियामेंट कैन फ्रेम प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, या फिर ऑप्शन डी इज सेइंग हाई कोर्ट्स कैन नॉट सुपरवाइज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उस स्टेट की सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर होता है हाई कोर्ट। ठीक है, वो सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए डिसीजन ले सकता है। देन ओनली पार्लियामेंट कैन फ्रेम प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बी इज correct, and it is saying that it is part of the court's constitutional obligations to secure justice under article 21. fine, explanation क्या करी? The supreme court can issue guidelines to ensure procedural fairness consistent with article 21 and then article 227 and 235 powers of superintendence. fine, then the next principle is saying, this question is quite interesting students. So the principle is saying that जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, अभी मतलब यही पूरा हेडिंग ही एक तरीके से जो भी आज हमने टॉपिक पैसेज डिस्कस किया उसका हेडिंग है ये। तो फैक्ट्स आर सेइंग दैट अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट दिस इज अ मॉरल स्टेटमेंट नॉट अ लीगल वन। ठीक है, एक स्टूडेंट ये कहता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक मॉरल स्टेटमेंट है, लीगल वन नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन लाइट ऑफ द जजमेंट? द स्टेटमेंट नाउ कैरीज कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 jurisprudence. It is merely rhetorical without legal implications. Then option C is saying that it applies only in criminal cases, and then option D is saying it is contrary to Indian jurisprudence. Fine. तो स्टूडेंट्स क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? So obviously students, the correct answer should be option A. Why? Because the statement now carries constitutional significance as part of article 21 jurisprudence. article 21 आपके right to speedy trial को recognize करता है, तो क्योंकि उसको constitutional obligation, उसको constitutional significance मिल रहा है, तो ये स्टेट कोई हल्का फुल्का स्टेटमेंट नहीं है, प्रॉपर स्टेटमेंट है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन बैक करता है। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस justice delayed is justice denied news, and these are some practice MCQ students now. So correct answer is A. So the next topic is students death penalty sentencing inconsistency and the Supreme Court of India 2025 update. क्या किस बारे में ये बात हो रही है? डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग इनकंसिस्टेंसी एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2025 अपडेट। सो स्टूडेंट्स बेसिकली अभी सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से एक याचिका आई थी जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस याचिका में बेसिकली ये था कि गवर्नमेंट ने कोर्ट से ये अपील करी थी कि जो हमारे यहाँ पे डेथ सेंटेंस होता है ना, जो डेथ सेंटेंस दिया जाता है मुजरिमों को, कन्विक्टेड मुजरिमों को, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जाए। कैसा चेंजेस किया जाए वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिजेक्टेड अ पिटीशन फ्रॉम द सेंटर मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट सीकिंग न्यू विक्टिम एंड सोसाइटी सेंट्रिक गाइडलाइंस फॉर डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग। ठीक है, बेसिकली जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई एक पिटीशन लेकर के, पिटीशन मींस याचिका लेकर के, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस पिटीशन में था कि न्यू विक्टिम एंड सोसाइटी सेंट्रिक गाइडलाइंस थी फॉर डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग। बेसिकली सेंटर ये चाह रही थी कि जो हैंग टिल डेथ हमारे यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है डेथ पेनल्टी में, डेथ पेनल्टी के बाद जो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ क्या होता है हमारे यहाँ, हैंग टिल डेथ किया जाता है। तो उसमें गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि अब थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करके, थोड़ा सा उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करके, सोसाइटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज करके इस पूरे सिस्टम में थोड़े से चेंजेस करे जाएं। ठीक है, किस सिस्टम में?
victim and society centric guidelines for death penalty sentencing में, ठीक है. It also commented on the need to avoid both undue leniency and excessive severity in sentencing. बेसिकली इस याचिका में ये भी था कि हमको अवॉइड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, किसी भी केस को जज करते टाइम ज़्यादा लीनियंट भी नहीं होना है, ज़्यादा हार्श भी नहीं होना है, न्यूट्रल रह के करना है, ठीक है. तो टू अवॉइड अनड्यू लीनियंसी एंड एक्सेसिव सिवियरिटी. देन द कोर इशू क्या है इसका, हाउ डू वी इंश्योर कंसिस्टेंसी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स व्हेन इम्पोजिंग द डेथ सेंटेंस. जब हम किसी को डेथ सेंटेंस देते हैं तो हम कैसे उसके फेयरनेस, उसके राइट्स को, इन सब चीज़ों को मतलब हम इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, न्यूज़ तो आपको समझ में आ गई. न्यूज़ क्या है? न्यूज़ बेसिकली यही थी कि कुछ लोगों को मतलब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन ये डाली कि हमारे यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस का मैकेनिज्म है, जो डेथ सेंटेंस के तरीके हैं, उसमें कुछ चेंजेस करे जाए और ज़्यादा सोसाइटी सेंट्रिक रूल्स या फिर वो मैकेनिज्म, मतलब कि जो कन्विक्ट है उसके भी राइट्स को रिकग्नाइज करके उस हिसाब से वहाँ पे प्रोविज़न होने चाहिए, ठीक है. तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन रिजेक्ट कर दिया. तो अभी इसमें क्या डॉक्ट्रिन्स है, क्या लीगल प्रिंसिपल्स है, कोर्ट का क्या स्टैंड है, क्लैट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक इसका पैसेज, वो हम सब अभी करेंगे, ठीक है. तो की डॉक्ट्रिन्स इसमें स्टूडेंट्स, पहली डॉक्ट्रिन तो हमको पता ही है क्या है. डेथ सेंटेंस की बात हो रही है तो यस ऑब्वियसली बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सबसे बड़ा हमारा केस है, जो सबसे ज़्यादा लैंडमार्क केस है इस चीज़ के लिए, ठीक है. तो सबसे पहली डॉक्ट्रिन तो हम लोग डिस्कस करेंगे, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन, जो किस केस से ओरिजिनेट हुई थी, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980. तो ये स्टूडेंट्स इसका साइटेशन आप याद रखना, साइटेशन भी नहीं, 1980 ईयर ही मेंशन है, तब याद कर सकते हो, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है. तो डेथ पेनल्टी ओनली व्हेन लाइफ सेंटेंस इज अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज, ठीक है. देखिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन बेसिकली ये बात करती है, जब बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का डिसीजन हुआ था और उसके बाद जब कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करी थी इसी केस लॉ में, तो फिर इसका मतलब क्या था. बेसिकली इसका मतलब था कि डेथ पेनल्टी सिर्फ तभी मिलेगी जब लाइफ सेंटेंस देने के लिए मतलब कोई प्रोविज़न ही नहीं बचा. जब हमारे यहाँ पे जैसे क्या है कि डेथ पेनल्टी इज द मोस्ट अल्टीमेट पनिशमेंट, ठीक है. उसके बाद सेकंड पे आता है लाइफ सेंटेंस. तो मोस्टली हमारे यहाँ लाइफ सेंटेंस ही दिया जाता है उन मुजरिमों को जिसमें डेथ पेनल्टी भी एप्लीकेबल है, लाइक 302 मर्डर में 302 आपका मतलब जैसे BNS में तो इट्स नाउ 101, वैसे 302 आपका IPC में देखोगे आप, तो वहाँ पे मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी का भी प्रोविज़न है, लेकिन दिया जाता है सिर्फ मोस्टली ये उम्र कैद, ठीक है, लाइफ सेंटेंस दिया जाता है. लेकिन बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में मान लीजिए कोई मर्डरर है जिसने बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे कुछ कर रखा है, या वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, या फिर वो एक थर्ड या फोर्थ टाइम का रिपीटर है, तो ऐसे केस में फिर अब वो, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता जा रहा है ना कि भाई हम मोस्टली 10 मर्डरर्स हैं तो उनको लाइफ सेंटेंस दे रहे हैं, लेकिन एक 11वां है जिसकी हिस्ट्री भी बहुत ख़राब है, जो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसको हमको क्या कहते हैं, अब हम उसको लाइफ सेंटेंस दे सकते हैं. अब ये थोड़ा सा रेयर केस है और इसको डेथ पेनल्टी ही देना होगा, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का ये मतलब था, ठीक है. देन दूसरा मेन डॉक्ट्रिन या फिर लीगल प्रिंसिपल इन्वॉल्व कौन सा हो रहा है, अगेन आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इट इंक्लूड्स प्रोसीजरल फेयरनेस, इंडिविजुअलाइज सेंटेंसिंग, ठीक है. देन आर्टिकल 14 विच टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेंटेंसिंग मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी. ये नहीं कि मतलब अगर मैं जज हूँ और मेरे सामने किसी एक ऐसे बंदे का केस है जिसको मैं लाइक नहीं करता हूँ और जो निर्दोष है, फिर भी मैं उसको फंसा रहा हूँ, फिर भी मैं उसके अगेंस्ट में डिसीजन दे रहा हूँ, ठीक है. तो ये मेरे को इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो, सेंटेंसिंग कभी भी आर्बिट्रेरी या डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए और बिल्कुल इक्वालिटी के साथ होना चाहिए, ठीक है. देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब कि जितना क्राइम किया है उसी के प्रपोर्शन में पनिशमेंट मिलेगी. ये नहीं कि क्राइम बहुत बड़ा है पनिशमेंट छोटी सी, या फिर क्राइम छोटा है पनिशमेंट बड़ी सी, ऐसा नहीं. प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए. पनिशमेंट मस्ट फिट क्राइम, कंसीडर मिटिगेटिंग एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर्स. फाइन. देन द नेक्स्ट इज रीसेंट डेवलपमेंट्स. अभी इसमें रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो सेंटर सॉट गाइडलाइंस टू प्रायोरिटाइज विक्टिम्स एंड सोसाइटी इन डेथ सेंटेंसेस केसेस. सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली एज विदाउट मेरिट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी मेरिट नहीं है, दम नहीं है इस याचिका में, ज़रूरत नहीं है ऐसी याचिका की, ठीक है. तो बेसिकली सेंटर ने वही कहा कि जो विक्टिम्स हैं हमें उनको भी थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना चाहिए और सोसाइटी इन डेथ सेंटेंस केसेस, ठीक है. हमें
थोड़ा सोसाइटी का भी सोचना चाहिए जब हम किसी को डेथ सेंटेंस देते हैं, ठीक है। देन द रिपोर्ट्स हाईलाइट परसिस्टेंस इनकंसिस्टेंसी इन कैपिटल सेंटेंसिंग। रिपोर्ट्स ये हाईलाइट करती हैं कि देर इज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन कैपिटल सेंटेंसिंग। इनकंसिस्टेंसी कैसे, मतलब कि मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है जिन्होंने सेम क्राइम किया है, ठीक है। तो उस सेम क्राइम के लिए ए को तो डेथ सेंटेंस मिल गया और बी को लाइफ सेंटेंस मिला है, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंसी क्यों है, ठीक है। तो यही चीज क्वेश्चन थी उस रिपोर्ट में, ठीक है। सिमिलर ऑफेंसेस यील्डिंग वाइडली डिफरेंट आउटकम्स, ठीक है, कि मतलब मल्टीपल लोगों ने वही सेम काम कर रखा है लेकिन उनको पनिशमेंट्स अलग अलग मिली हुई हैं। तो वो डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे, जजेस में, ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है। तो वो वही चीज़ हाईलाइटेड थी इस रिपोर्ट में जो सेंटर ने दी थी इस कोर्ट को, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज दैट सेंटेंसिंग कोर्ट्स मस्ट अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, एक्सेसिव सिवियरिटी एंड अनड्यू लीनियंसी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया कि जब भी आप कोई सेंटेंस दो, ठीक है, जब भी कोर्ट से कोई सेंटेंस जाए तो उसमें ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीजन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लीनियंट भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। फाइन, चलो अब नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द पैसेज, सो आई एम गेटिंग असाइड एंड यू कैन जस्ट pause the video and go through the passage carefully, fine, and meanwhile I am just discussing the passage now. So the passage is saying, students, that in recent times the Supreme Court of India has drawn attention to the persistent inconsistencies in capital punishment sentencing. While the death penalty remains constitutionally valid, the manner of its imposition, manner मतलब जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, फांसी देना, ठीक है, hand till death, and the associated sentencing process has been scrutinized. The center had sought guidelines that would prioritize victims and society in sentencing for heinous offenses, but the court rejected the plea, holding that existing frameworks must suffice unless compelling reasons justify change. Fine. Then the sentencing in death penalty cases is governed by the rarest of the rare doctrine, which demands exceptional circumstances before condemning a person to death. Yet empirical studies and judicial remarks alike show that two defendants convicted of equally grave offenses may receive brutally different outcomes. One may be sentenced to death, another for life imprisonment, depending on subtle differences in representation, geography, or judicial perspectives. Such disparity triggers constitutional concerns under Article 14 and Article 21. तो स्टूडेंट्स वही जो मैंने आपसे बात की थी इस पैसेज में, इस वाले पैराग्राफ में उसी के बारे में मेंशन्ड है कि सेम टाइप के मतलब ऑफेंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट आउटकम्स आते हैं। ग्रेव ऑफ में रिसीव ब्रूटली डिफरेंट आउटकम्स, वन मे बी सेंटेंस टू डेथ, अनदर फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब ये क्यों अलग अलग सेंटेंस मिलता है? सेम क्राइम अगर किया है, अलग अलग लोगों ने किया है, वही सेम चीज़ की है, तो फिर उनको सबको सेम टाइप की पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। किसी को तो आप सेंटेंस टू डेथ दे रहे हो, किसी को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो, और ये डिपेंड किस पे करता है डिफरेंसेस, ये रिप्रेजेंटेशन में, ज्योग्राफी में। तो इसी बारे में इस पैराग्राफ में मेंशन्ड है। देन द कोर्ट हैज एम्फेसाइज्ड दैट द सेंटेंसिंग स्टेज इज नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी, ठीक है। Mitigating factors, socio-economic background, mental health, age, prison conduct must be assessed alongside aggravating ones. It cautioned trial and high courts to avoid both excessive severity and undue leniency. ठीक है, excessive severity क्या होता है? Which undermines reformative ideals, ठीक है, and undue leniency which erodes deterrence and public confidence. The underlying principle is that fairness in sentencing is vital for the rule of law to function meaningfully. For public, the key question remains that does justice end with conviction, or only when punishment is inflicted in a constitutionally sound manner. Understanding the interplay between doctrines, discretion, and rights is crucial. The recent judicial commentary underscores the need for sentencing to be both consistent and principled, ensuring that the ultimate punishment does not become a lottery but a reasoned outcome aligned with constitutional governance. So I believe students आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पैसेज अच्छे से, तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा. Now let's move towards the first question. So students, the principle is saying that equal treatment under law, article 14 के बारे में बात करें, ठीक है. Fact are saying that two defendants commit identical offenses, one receives death sentence, the other life imprisonment, ठीक है. Which statement best reflects the Supreme Court's recent concern, ठीक है. अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हमने पूरा पैसेज पढ़ा, जो पूरा टॉपिक इवन डिस्कस किया,
उसका सार क्या है, सार मतलब समरीज, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सुप्रीम कोर्ट रीसेंट कंसर्न। इन चारों में से सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न सबसे ज्यादा स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए इज सेइंग दैट such difference is acceptable as sentencing is discretionary। डिस्क्रिशनरी मतलब कि जज के ऊपर मर्जी होती है, वो जैसा सेंटेंस देना चाहे दे सकता है। देन द डिफरेंस मे वायलेट आर्टिकल 14 unless justified by individualized factors। Then option C is saying that article 14 does not apply to sentencing under death penalty, and option D is saying that sentencing disparity is irrelevant in capital cases। So सीधी सी बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बार बार क्या बात कह रहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ होना चाहिए। हमारा आर्टिकल 14 ये कहता है, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ। तो 2 डिफेंडेंट्स हैं, मतलब जिनके डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंडेंट 2 पार्टीज होती है। प्रोसिक्यूशन जिसने केस फाइल करा है, डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। तो 2 डिफेंडेंट है जिन्होंने एक ही जैसे आइडेंटिकल ऑफेंस करें, एक को तो डेथ सेंटेंस मिल गया है लेकिन दूसरे को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है, ठीक है। तो अब इसमें कोर्ट का रीसेंट विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कोर्ट्स रीसेंट कंसर्न, ठीक है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कोर्ट के इस सेंटेंस को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो द डिफरेंस में वायलेट आर्टिकल 14, जो ये डिफरेंस है ना, ये बेशक आर्टिकल 14 को वायलेट करता होगा अनलेस, ठीक है, अनलेस जस्टिफाइड बाय इंडिविजुअलाइज्ड फैक्टर्स। अब इंडिविजुअलाइज्ड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात हो रही है, मान लीजिए ए और बी आर द 2 पर्सन्स, ठीक है। अब 1 रिसीव्स डेथ सेंटेंस, तो मान लीजिए ए को तो डेथ सेंटेंस मिला है, ठीक है, और बी को मिला है उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। दोनों का क्राइम सेम था, सेम क्राइम था, लेकिन ए को क्यों डेथ सेंटेंस मिला है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको लग रहा होगा कि इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14, ठीक है, लेकिन इसमें आगे क्या लिखा है, अनलेस जस्टिफाइड बाय इंडिविजुअलाइज्ड फैक्टर्स। अब इंडिविजुअलाइज्ड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मान लीजिए ए ने पहले भी यही सेम क्राइम 5 बार कर रखा है, बी ने पहली बार किया है, ठीक है। तो अब ए ने कोई एक क्राइम वही सेम वो रिपीट करा है, यानी कि एज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, सुधरा नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि ए को डेथ सेंटेंस दे दिया, एंड बिकॉज बी का फर्स्ट टाइम था तो उसको उम्र कैद दिया, ठीक है। तो यहां पे मतलब होता है अनलेस जस्टिफाइड बाय इंडिविजुअलाइज्ड फैक्टर, ठीक है। तो डिफरेंस, अगर मान लीजिए ए और बी दोनों फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते और तब भी दोनों को अगर एक ही सेम क्राइम की अलग अलग पनिशमेंट मिलती, तो वहां पे इट वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, बट इट हैज बीन जस्टिफाइड बाय इंडिविजुअलाइज्ड फैक्टर, सो इट इज नॉट अ वायलेशन, फाइन। तो explanation is saying that the court highlighted the inconsistency in sentencing raises equality concern, fine। Then the next question is saying द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, ठीक है, प्रिंसिपल है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन का। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, अ हीनियस ऑफेंस इज कमिटेड बट मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, यंग एज, नो प्रायर रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ठीक है। तो विच आउटकम अलाइंस विद डॉक्ट्रिन एंड रिसेंट गाइडलाइंस, फाइन। तो प्रिंसिपल हमारा क्या कह रहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन, यानी कि जो डेथ सेंटेंस है वो हमेशा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में देना चाहिए, ठीक है। अ हीनियस का ऑफेंस इज कमिटेड, हीनियस मतलब बहुत ही बड़ा खराब क्राइम कमिट हुआ है, लेकिन बट मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, थोड़ी सी सर्कमस्टांसेस भी अलग हैं। क्या अलग है, जो ऑफेंडर है वो यंग है, जवान है, काफ़ी छोटा है अभी, उसका कोई प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो विच आउटकम अलाइंस विद डॉक्ट्रिन एंड रीसेंट गाइडलाइंस, तो ऑटोमेटिक डेथ सेंटेंस बिकॉज ऑफेंस इज हीनियस। क्या हमारा जो डॉक्ट्रिन है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर और जो हमारा रीसेंट गाइडलाइन है वो क्या इस बारे में बात करता है, ठीक है। देन लाइफ इंप्रिजनमेंट बिकॉज मिटिगेटिंग फैक्टर्स मस्ट बी वेड, ठीक है। देन ऑप्शन सी इज सेइंग दैट सेंटेंसिंग स्टेज इररेलेवेंट, ज्यूरी डिसाइड्स, ठीक है, कि मतलब सेंटेंसिंग स्टेज का कोई मतलब नहीं, ज्यूरी डिसाइड करेगी। तो क्या इंडिया में ज्यूरी सिस्टम है। एंड देन ऑप्शन डी इज सेइंग दैट स्टेट में चूज विक्टिम सेंट्रिक फैक्टर्स ओनली, तो इसका मतलब है कि स्टेट में चूज विक्टिम सेंट्रिक फैक्टर्स ओनली, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ऐसा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज मोस्ट रिलेवेंट टुवर्ड्स दिस फैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज सेइंग दैट लाइफ इंप्रिजनमेंट बिकॉज मिटिगेटिंग फैक्टर्स मस्ट बी वेड, ठीक है। तो वही सेम थिंग जो अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस हुई थी कि सेम सर्कमस्टांस, मान लीजिए 2 लोगों ने सेम चीज करी है, ठीक है, एक को अलग
सेंटेंस मिला, एक को अलग सेंटेंस मिला, तो डिफरेंस कहाँ से आता है? क्योंकि हम इंडिविजुअलाइज्ड फैक्टर्स देखते हैं ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी देखी गई, मिटिगेटिंग फैक्टर देखा गया कि भाई हाँ ठीक है, अभी जो ऑफेंडर है वो अभी छोटा है, हो सकता है उसको कम समझ रही हो, छोटा मतलब कि इतना भी छोटा नहीं, 18 से ऊपर गए तभी उसका केस बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ नॉलेज, उसने ये गलती कर दी और उसका कोई प्रायर रिकॉर्ड भी नहीं था, तो ऑटोमेटिक डेथ सेंटेंस, तो बिकॉज ऐसा तो कोई प्रोविजन है नहीं, तो यस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हम उसे देंगे, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयर की बात होती है ना यार, जो लाइफ सेंटेंस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में देना। तो क्या यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अप्लाई कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज मिटिगेटिंग फैक्टर्स को भी आपको देखना है, ठीक है। तो आंसर इज आंसर बी। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? मिटिगेटिंग फैक्टर्स आर मैंडेटरी अंडर दिस डॉक्ट्रिन एंड यू कैन नॉट इग्नोर देम। देन the next principle, it is saying that procedural fairness under article 21, तो a death sentence is issued but defense counsel is absent during crucial sentence hearing, ठीक है। तो procedural fairness मतलब कि जो भी ट्रायल चल रहा है, जो भी केस की जो प्रोसीडिंग्स हो रही है, जो कोर्ट में केस चल रहा है ना, उसकी प्रोसीजरल फेयरनेस इंश्योर होनी चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 21। प्रोसीजरल फेयरनेस का क्या मतलब है कि आप का जो कोर्ट में केस चल रहा है उस बीच वो पूरा अच्छे से, ईमानदारी से, फेयरली होना चाहिए, उसमें ना विक्टिम के साथ और ना ही एक्यूज्ड के साथ कोई मतलब चीटिंग नहीं हो सकती है किसी का। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पर्सन एक्यूज्ड है उसको हक नहीं है अपनी सफाई में कुछ बोलने का या अपना एडवोकेट रिप्रेजेंट करने का, उसको पूरा हक है, उसके वहाँ पे ह्यूमन राइट्स पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अ डेथ सेंटेंस इज इशूड, एक डेथ सेंटेंस इशू हुआ है, लेकिन जो डिफेंस का काउंसिल है, यानी कि जो उसका एडवोकेट है, डिफेंस काउंसिल, ही इज एब्सेंट ड्यूरिंग क्रूशियल सेंटेंस हियरिंग। तो विच इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज सेइंग दैट सेंटेंस वैलिड बिकॉज कन्विक्शन सक्सीडेड। तो क्या ये प्रोसीजरल फेयरनेस अंडर आर्टिकल 21 फॉलो कर रहा है? क्या ये सेंटेंस वैलिड है? इज दिस अ वैलिड सेंटेंस? ठीक है। देन सेंटेंस मे बी इनवैलिड फॉर लैक ऑफ फेयर हियरिंग। देन ऑप्शन, क्या ये एक इनवैलिड सेंटेंस है? क्या इसकी प्रॉपर हियरिंग नहीं हुई थी? देन ऑप्शन सी इज सेइंग दैट आर्टिकल 21 डजंट प्रोटेक्ट सेंटेंसिंग स्टेज। क्या ऐसा कोई प्रोविजन आर्टिकल 21 में प्रोवाइडेड है? देन ऑप्शन डी इज सेइंग दैट ओनली लाइफ सेंटेंसेस आर रिव्यूड, सिर्फ लाइफ सेंटेंस रिव्यूड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है? अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा देखा उसमें क्या है? प्रोसीजरल फेयरनेस अंडर आर्टिकल 21। प्रोसीजरल फेयरनेस कैसे इस्टेब्लिश होगी? कि जो दोनों पार्टीज हैं, यानी कि एक्यूज्ड पार्टी एंड द विक्टिम पार्टी, दोनों को अपना पक्ष रखने का बराबर हक मिले, दोनों अपनी दलीलें रख पाएँ, जो भी एविडेंसेस प्रोड्यूस करे हैं उन एविडेंसेस को अच्छे से उनको देखा जाए, उनको कंसीडर किया जाए, और उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो कंक्लूजन पे कोर्ट आता है वो कंक्लूजन माना जाता है, ठीक है। बट क्या यहाँ पर एक पार्टी को मौका मिला अपना पक्ष रखने का? अ डेथ सेंटेंस इज इशूड अगेंस्ट समवन, बट उसका डिफेंस काउंसिल ही नहीं था, उसके पक्ष में रखने वाली बात रखने वाला वो आया ही नहीं था। तो क्या ये एक फेयर ट्रायल है? ऑब्वियसली नो। तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर बी, सेंटेंस मे बी इनवैलिड, और रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेयर हियरिंग। फाइन, चलिए आंसर क्या है? आंसर इज बी। एक्सप्लेनेशन इज सेइंग दैट सेंटेंस स्टेज मस्ट satisfy fair procedure for article 21 rights. Fine. Then the next principle is saying, students, proportionality in punishment. Proportionality in punishment का मतलब क्या है? कि जो भी पनिशमेंट मिल रही है वो प्रपोर्शन के हिसाब से मिलनी चाहिए, कि वो क्राइम कितना इंटेंस था, कितना हीनियस था, या फिर नॉर्मल था या हीनियस था, कैसा था, उसके प्रपोर्शन में पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये नहीं कि पनिशमेंट मतलब क्राइम तो बहुत बड़ा है, पनिशमेंट छोटी सी मिल रही है, या छोटा सा कोई क्राइम करते उसके लिए बहुत पनिशमेंट मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्राइम की प्रपोर्शन में पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फाइन। सो द प्रिंसिपल इज सेइंग proportionality in punishment. Facts are, trial court gives death sentence, higher courts find similar offenders got life sentences, ठीक है, which is the best remedial action. तो facts ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया किसी को, ठीक है, फिर बाद में जिसको डेथ सेंटेंस मिला उसने फिर क्या कहते हैं, अपील में केस डाला होगा हाई कोर्ट में, ठीक है, अपील कर सकते हो ना आप अपने डिसीजन के अगेंस्ट, तो अपील किया होगा, फिर हाई कोर्ट ने उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस कर दिया, ठीक है। हायर कोर्ट फाइंड सिमिलर ऑफेंसेस, तो हायर कोर्ट ने अच्छा ये देखा कि इसी टाइप के ऑफेंस में जिसपे
ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया उस पर्सन को, उसी टाइप के और केसेस हाई कोर्ट ने फिर देखा कि उसी टाइप के ऑफेंडर्स को लाइफ सेंटेंस मिला है, तो विच इज द बेस्ट रेमिडियल एक्शन क्या है? लीव सेंटेंस एज इज, डिस्क्रिशन अलाउड, ठीक है। फिर ऑप्शन बी इज सेइंग commutation to life if consistency lacks. Option C is saying that automatically converts all such cases to life. Option D is saying that death sentence upheld because crime was heinous. ठीक है, अभी हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है? हमारा प्रिंसिपल बात कर रहा है प्रोपोर्शनैलिटी इन पनिशमेंट के बारे में, कि प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए पनिशमेंट में। प्रोपोर्शन टू व्हाट? प्रोपोर्शन टू द क्राइम डन बाय द ऑफेंडर, ठीक है। तो मतलब कि जितना क्राइम है उतनी ही पनिशमेंट होनी चाहिए। अब हमारा फैक्ट ये कह रहा है कि भाई दो लोगों को मतलब एक बंदे को ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है, लेकिन उसने जो ऑफेंस किया है वही सेम ऑफेंस करने वाले ऑफेंडर्स को लाइफ सेंटेंस मिला है, तो फिर उसको क्यों डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए? तो हमारा रेमिडियल, अब इसका क्या मतलब क्या है कि सीधी सी बात है उसको लाइफ ही सेंटेंस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है ना, कि मतलब एक ही क्राइम के लिए ऑफेंडर्स को लाइफ सेंटेंस मिल रहा है, सिर्फ किसी एक को डेथ सेंटेंस मिला, तो यानी कि उसका क्राइम उसकी जो पनिशमेंट है वो क्राइम के उसकी आप प्रोपोर्शनैलिटी अगर देखो तो क्राइम के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा पनिशमेंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, विच इज़ द बेस्ट रेमिडियल एक्शन? सो द बेस्ट रेमिडियल एक्शन वुड बी दैट कम्यूटेशन टू लाइफ इफ कंसिस्टेंसी लैक्स, ठीक है। तो आंसर इज बी। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? व्हेन लाइफ सेंटेंसिंग लैक्स इवन एप्लीकेशन, कम्यूटेशन में रिस्टोर फेयरनेस। फाइन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल इज सेइंग दैट अवॉइडिंग एक्सेसिव सीवियरिटी एंड अनड्यू लीनियंसी, राइट? सो अवॉइडिंग एक्सेसिव सीवियरिटी एंड अनड्यू लीनियंसी का क्या मतलब है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी कोर्ट कोई भी क्राइम की या फिर किसी भी केस की पनिशमेंट देना, तो उस टाइम ये इंश्योर करे कि ज़्यादा एक्सेसिव सीवियर भी नहीं हो रहा है कोर्ट। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीवियर कोई पनिशमेंट दे रहा है, या फिर ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गया कि क्राइम तो बहुत है, ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन कोर्ट थोड़ा लीनियंटली एक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो प्रिंसिपल इज सेइंग दैट अवॉइडिंग एक्सेसिव सीवियरिटी एंड अनड्यू लीनियंसी। फाइन। तो फैक्ट इज सेइंग दैट कोर्ट वांट्स लोअर कोर्ट्स दैट बोथ एक्सट्रीम अंडरमाइन जस्टिस, बोथ एक्सट्रीम्स, यानी कि ज्यादा एक्सट्रीम सीवियर भी नहीं होना, ज्यादा एक्सट्रीम लीनियंट भी नहीं होना, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट इम्प्लीकेशन? तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं सारे के सारे, ABCD। सो ऑप्शन ए इज सेइंग ओनली हार्श सेंटेंसेस मैटर, लीनियंसी इज ऑलवेज रॉन्ग, कि हम ऑप्शन ए कह रहा है कि हार्श सेंटेंस ही हमेशा देना चाहिए, लीनियंसी गलत होती है। ऑप्शन बी सेइंग दैट ओनली लीनियंट सेंटेंसेस मैटर, सीवियरिटी एंडोर्स डेटरेंस, कि हमेशा लीनियंट सेंटेंस ही होना चाहिए, सीवियर होने से डेटरेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा खौफ या फिर वैसा माहौल बन सकता है, रूथलेस, ब्रूटल, राइट। ऑप्शन सी इज सेइंग बोथ हार्नेस विदाउट रीजन एंड लीनियंसी विदाउट डेटरेंस आर हार्मफुल, कि हार्शनेस मतलब सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि हार्शनेस विदाउट रीजन, कि बिना किसी कारण के हार्श होना, या लीनियंसी विदाउट डेटरेंस, कि मतलब डेटरेंस है लेकिन तब भी लीनियंट होना, दोनों ही खतरनाक है, ठीक है। यानी कि हार्शनेस विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा हार्श डिसीजन लेना, या फिर कारण होते हुए भी लीनियंट, मतलब कारण है आपकी हार्श डिसीजन लेने का फिर भी आप लीनियंट हो, ये दोनों डेंजरस है, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इज सेइंग सेंटेंसिंग स्टैंडर्ड्स डोंट मैटर फॉर द डेथ पेनल्टी। तो विच इज द करेक्ट इम्प्लीकेशन? तो करेक्ट इम्प्लीकेशन ओनली हार्श सेंटेंस मैटर, ऐसा कुछ कह रहा है नहीं, ठीक है। देन ऑप्शन बी कह रहा है ओनली लीनियंट सेंटेंस मैटर, नहीं, हमारा प्रिंसिपल कह रहा है बैलेंस होना चाहिए। ऑप्शन सी इज सेइंग बोथ हार्शनेस विदाउट रीजन एंड लीनियंसी विदाउट डेटरेंस आर हार्मफुल। So yes, this will be the correct answer, ठीक है। Answer is C. Explanation: Supreme Court's recent remark explicitly says both extremes pose a threat to justice. Fine. Then next question is principle is about victim centric versus accused centric sentencing. ठीक है। तो इसमें हमारे facts of the case है, center asked for victim centric guidelines, कोर्ट रिफ्यूज्ड, ठीक है, विच डिस्क्राइब्स कोर्ट्स स्टांस। तो प्रिंसिपल हमारा ये कह रहा है, प्रिंसिपल में बेसिकली एक टसल दिखा रखा है विक्टिम सेंट्रिक, की मतलब विक्टिम के प्रति थोड़ा सा झुका हुआ लॉ। विक्टिम मतलब कि जिसके अगेंस्ट कुछ हुआ है, जिसने केस फाइल करा है, जो विक्टिम है, जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, वर्सेस
सेंट्रिक सेंटेंसिंग की, मतलब थोड़ा सा एक्यूज्ड के प्रति झुकाव होकर सेंटेंसिंग देना, ठीक है। तो फैक्ट ये कह रहा है कि सेंटर आस्क्ड फॉर विक्टिम सेंट्रिक गाइडलाइंस, सेंटर ने ये कहा था कि आप थोड़ा सा विक्टिम सेंट्रिक गाइडलाइंस बनाओ। विक्टिम सेंट्रिक मतलब कि जो जिसके साथ बुरा हुआ है उसके प्रति झुकाव होने की वाली गाइडलाइंस आप बनाओ। कोर्ट ने मना कर दिया, तो कोर्ट का यहाँ पे क्या स्टैंस है, कोर्ट ने क्यों मना किया होगा, ठीक है, रीजन क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज सेइंग दैट विक्टिम्स interest always override accused rights. Option B is saying accused rights cannot be ignored even in death sentences. Option C is saying that society's interests must always determine death sentence. And option D is saying that sentencing guidelines should exclude mitigating factors, right? तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, what should be the correct answer for this question according to you guys? क्यों कोर्ट का क्या स्टैंस हो सकता है? देखिए, विक्टिम्स इंटरेस्ट ऑलवेज ओवरराइड एक्यूज्ड इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा प्रिंसिपल ऐसा कोई मेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज सेइंग दैट एक्यूज्ड राइट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड इवन इन डेथ सेंटेंसेस, जो एक्यूज्ड जिसके खिलाफ लगा है, केस लगा है, उसके राइट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, डेथ सेंटेंस में भी उसके कुछ राइट्स होते हैं, ये इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऑप्शन सी इज सेइंग दैट सोसाइटीज इंटरेस्ट मस्ट ऑलवेज डिटरमाइन डेथ सेंटेंस, कि सोसाइटी का इंटरेस्ट के हिसाब से ही हमेशा डेथ सेंटेंस होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी इज सेइंग दैट सेंटेंसिंग गाइडलाइंस शुड एक्सक्लूड मिटिगेटिंग फैक्टर्स, मिटिगेटिंग फैक्टर्स वही जो हमने अभी देखा था, यंग एज, नो प्रायर रिकॉर्ड, तो ये कह रहा है कि सेंटेंसिंग गाइडलाइंस में ये सब इग्नोर करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है, ये सब हमारे कोर्ट्स कंसीडर करता है। सोसाइटीज इंटरेस्ट मस्ट ऑलवेज डिटरमाइन डेथ सेंटेंस, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। देन विक्टिम्स इंटरेस्ट ऑलवेज ओवरराइड एक्यूज्ड राइट्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बी बचता है, वो ये कह रहा है एक्यूज्ड राइट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड इवन इन डेथ सेंटेंसेस, एक्यूज्ड के राइट को आप नहीं इग्नोर कर सकते हो डेथ के सेंटेंस से भी, और हमारा कोड भी यही कहता है, ठीक है। तो आंसर इज बी। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, द कोर्ट रिजेक्टेड विक्टिम सेंट्रिक प्ली एज इट वुड अंडरमाइन procedural safeguards for accused. Fine. Then students, the next news, and this is one of the most important news of, I would say, this whole year legal current affairs, ठीक है। क्रिप्टो के अराउंड की न्यूज़ है, जीके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है और लॉजिक इसमें लीगल रीजनिंग में भी आ सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी लॉ, तो आपके मिसलेनियस लॉस भी इसमें कवर हो जाएगा एक, और इसी बहाने आप ये भी देख लोगे कि क्या अपडेट है। तो स्टूडेंट्स वही मैं कहता हूँ, हमको सिर्फ अपडेट जानने से हमारा कुछ नहीं होगा या फिर सिर्फ पैसेज करने से हमारा कुछ नहीं होगा, हमको एक अप्रोच लेके चलनी है, हमको करंट अफेयर्स भी कवर करना है, लीगल करंट अफेयर्स भी कवर करना है, ताकि हमको एक आइडिया तो हो उस टॉपिक का कि चल क्या रहा है, और फिर हमें उसके पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी। फाइन। तो मद्रास हाई कोर्ट क्या कहता है, क्रिप्टो करेंसी इज प्रॉपर्टी अंडर इंडियन लॉ, इज प्रॉपर्टी अंडर इंडियन लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड एक बार इस केस का देख लेते हैं। अ केस बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट्स इन्वॉल्व्ड अ डिस्प्यूट ओवर स्टोलन क्रिप्टो करेंसी एसेट्स, ठीक है। एक केस आता है मद्रास हाई कोर्ट के पास, ठीक है। कैसा केस आता है, जिसमें एक ऐसा डिस्प्यूट इन्वॉल्व है, जिसमें एक ऐसा डिस्प्यूट आता है, मतलब मद्रास हाई कोर्ट के पास, जिसमें किसी पर्सन की क्रिप्टो करेंसीज चोरी हो जाती है, ठीक है, ओवर स्टोलन क्रिप्टो करेंसी एसेट्स। द court ruled that cryptocurrency can be legally recognized as property even though it is intangible and digital. Tangible intangible होते हैं ना हमारे, tangible intangible properties, intangible properties जैसे क्या, जैसे IPR आपका ट्रेडमार्क, आपका पेटेंट, ये सब आपकी intangible assets हैं आपके। तो सिमिलरली कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी आर योर intangible assets, ठीक है, और इसको कोर्ट ने लीगली रिकॉग्नाइज किया एज प्रॉपर्टी, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ओपन्स द डोर फॉर ओनरशिप राइट्स, अब क्योंकि भाई कोर्ट ने इसको क्लासिफाई किया है कैसे, एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के साथ हमारे बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, हमारे बहुत सारे राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है। तो दिस क्लासिफिकेशन ओपन्स द डोर फॉर ओनरशिप राइट्स, टैक्सेशन, इनहेरिटेंस एंड फ्रॉड प्रोटेक्शन अंडर इंडियन लॉ, ठीक है। अब क्योंकि आप इसको एज अ प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज कर रहे हो अगर क्रिप्टो करेंसी को, तो कल को उस पर टैक्सेशन भी होगा, इनहेरिटेंस भी होगा, कि भाई किसी पर्सन के पास वो इतना क्रिप्टो ओन करता था, अब उसके बाद वो इतना क्रिप्टो आगे अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ रहा है, तो उसका भी इनहेरिटेंस होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो ये क्लासिफिकेशन सब, ये सारी चीज़ों के लिए रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस इस पूरे, मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाएगा, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड दिस टॉपिक कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम, सो बी अटेंटिव हियर। बट
जो कोर्ट ने रूलिंग दी है अब उससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उससे क्या लीगल इंप्लीकेशन, क्या लीगल क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बनता है कि कैन डिजिटल करेंसीज बी कंसिडर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी? Does Indian law recognize ownership of assets that have no physical existence? And how does this ruling affect taxation, trusts and criminal prosecution for क्रिप्टो रिलेटेड फ्रॉड? तो अभी हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर भी करेंगे प्लस पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस भी करेंगे इसको टॉपिक की। फाइन। कोर्ट की रीजनिंग क्या है? कोर्ट ये कहता है कि क्रिप्टो करेंसीज हैज डिफाइनेबल वैल्यू, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज की डिफाइनेबल वैल्यू है, ट्रांसफरेबिलिटी है, ट्रांसफर हो सकते हैं, एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ कंट्रोल ऑल फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी के जो भी फीचर्स है अंडर व्हाट, अंडर प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लॉ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप अगर देखोगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए, तो उसमें प्रॉपर्टी की प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो अब इस पे भी अप्लाई हो रही है, किस पे? क्रिप्टो पे, ठीक है। तो इट हैज डिफाइनेबल वैल्यू, इट हैज ट्रांसफरेबिलिटी, इट एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ कंट्रोल ऑल फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी। इवन द गवर्नमेंट डज नॉट ट्रीट क्रिप्टो, इवन इफ द गवर्नमेंट डज नॉट ट्रीट क्रिप्टो एज अ लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? क्रिप्टो को कोर्ट ने ऐसे तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि यस इट इज अ प्रॉपर्टी, लेकिन इसको अभी तक कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने एक लीगल टेंडर की तरह नहीं रिकॉग्नाइज करा है। लीगल टेंडर मतलब कि जो हमारे नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, वो सब लीगल टेंडर है। उससे आप मेरे को पेमेंट कर सकते हो, मैं आपको पेमेंट कर सकता हूँ, चेक्स और आपका डिमांड ड्राफ्ट, ये सारे के सारे लीगल टेंडर है जिससे एक दूसरे को पेमेंट करी जा सकती है। लेकिन क्या क्या क्रिप्टो करेंसी से एक दूसरे को पेमेंट करी जा सकती है? नहीं। Yes, cryptocurrency is considered a property now by Madras High Court, but it is not considered as a legal tender। नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी से जाके पेमेंट कर दो या रिसीव कर लो, उसके लिए अभी ये वैलिड नहीं माना गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डज नॉट ट्रीट क्रिप्टो एज अ लीगल टेंडर, इट रिमेन्स एन असेट केपेबल ऑफ ओनरशिप, ठीक है। लेकिन ये एक असेट माना गया है जो ओनरशिप के लिए केपेबल है, यानी कि जिसकी ओनरशिप करी जा सकती है, एक ऐसा असेट माना गया, ठीक है। द कोर्ट साइटेड ग्लोबल प्रेसिडेंट। अच्छा, ये कोर्ट ने जो रीजनिंग दी है, जो कोर्ट ने प्रॉपर्टी कंसीडर किया है, मद्रास हाई कोर्ट ने जो प्रॉपर्टी कंसीडर किया क्रिप्टो करेंसी को, इसके लिए उसने भी कुछ ग्लोबल प्रेसिडेंट साइट किए। ग्लोबल प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? हमने कई बार पढ़ा हुआ है। प्रेसिडेंट मतलब कि एक बार कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया गया, अब वो एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि कल को अगर इस तरीके के और इसी सेम फैक्ट्स वाले अगर केस आएंगे तो किस तरीके से कोर्ट को अपना डिसीजन देना होगा, ठीक है। उसको कहते हैं हम प्रेसिडेंट, यानी कि एग्जाम्पल सेट कर चुका है कोर्ट पहले कभी सेम केस पे, सेम फैक्ट्स वाले केस पे, ठीक है। तो कोर्ट ने ग्लोबल प्रेसिडेंट दिए, कहाँ के? सिंगापुर के दिया, यूके का दिया, कि इनको भी यहाँ पर क्रिप्टो को एक प्रॉपर्टी की तरह माना गया, एंड नोटेड दैट इंडियन प्रॉपर्टी लॉ इज फ्लेक्सिबल एनफ टू इंक्लूड इनटेंजिबल एसेट्स। और ये साइड किया कि जो इंडियन प्रॉपर्टी लॉ है ये इतना फ्लेक्सिबल है कि हम क्रिप्टो को एक इंटेंजिबल एसेट्स में काउंट कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि जो आप देख नहीं सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपका कॉपीराइट हो गया, आपका ट्रेडमार्क हो गया, आपका जो इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आता है, उसी में ही क्रिप्टो को भी लिया गया है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द पैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो उस टॉपिक को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिया है कि आपको जितना आइडिया मिल जाए, हमने उतना डिस्कस करा है टॉपिक। काफ़ी ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं। प्रॉपर्टी लॉ इज़ अ टॉपिक विच इज़ मोर रेलेवेंट फॉर पीजी लेवल। यूजी में उतना ज़्यादा नहीं आता है प्रॉपर्टी का, बट स्टिल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं लेकर आया हूँ। ये बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपको भी जितना रिक्वायरमेंट है उतना पता होना चाहिए। आना होगा तो इसी सब में ही आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इन October 2025 the Madras High Court delivered a significant judgment recognizing cryptocurrency as property under Indian law. The case arose when a petitioner alleged theft of digital coins from his online wallet and sought recovery. The court held that cryptocurrencies, though not legal tender, have intrinsic economic value and are capable of being owned, transferred and protected as any other movable assets. The court reasoned that the concept of property in India is not confined to physical or tangible items. Anything with determinable value, exclusive control and transferability qualifies as property. Hence, crypto assets fall within the legal definition of movable property under the General Clauses Act 1897 and the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which penalizes misappropriation of property. Fine. Then the classification has wide ramifications. Once recognized as property,
cryptocurrencies can be inherited, taxed, or held in trust. Fine. So the misappropriation or fraud involving such assets does not mean it is legal currency, rather it is a private asset subject to regulation. Fine. The judgment also reviewed constitutional debates. If ownership of crypto is a property right, can the state regulate or seize it? How will taxation and anti-money laundering laws adapt? For students of law, the ruling illustrates how courts interpret traditional legal principles in response to technological changes, technological change, blending the old with the new within India's constitutional statutory framework. ठीक है students, you can just pause the video and read the passage more thoroughly if you want. And then now let's move towards the first question. So the principle is saying that property includes any asset capable of ownership, enjoyment और ट्रांसफर. ठीक है, प्रिंसिपल हमारा ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा. प्रॉपर्टी विल इंक्लूड एसेट्स विच आर केपेबल ऑफ ओनरशिप, एंजॉयमेंट और ट्रांसफर. ठीक है, तो अ पर्सन्स क्रिप्टो करेंसी वॉलेट इज हैक्ड, कॉइन्स स्टोलन, उसके क्रिप्टो कॉइन्स चोरी हो गए. तो विच लीगल कंक्लूजन फॉलोज द मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट. जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है ना, उसमें इनमें से कौन सा कंक्लूजन उसके साथ सबसे ज्यादा फिट बैठेगा. तो ऑप्शन इज सेइंग, ए इज सेइंग दैट क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट बी प्रॉपर्टी एज इट इज इंटेंजिबल. बिल्कुल गलत सेंटेंस, ऐसा हमने पढ़ा कुछ भी नहीं है. देन ऑप्शन बी इज सेइंग थेफ्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी अमाउंट्स टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. क्या ऐसा मेंशन था? दोबारा आते हैं यहाँ पे. हालांकि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली पैसेज के अंदर से मिल जाएगा. ठीक है, आपको अगेन प्रिंसिपल ही अप्लाई करना है, बट क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है पैसेज के अंदर आंसर, तो इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूं. ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन ये कह रहा है विच लीगल कंक्लूजन फॉलोज द मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट, और ये कह रहा है कि थेफ्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी अमाउंट्स टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. क्या ऐसा कुछ है? यहाँ पे देखते हैं मिस अप्रोप्रिएशन. यहाँ पे अब इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं स्टार्टिंग से. The court reasoned that the concept of property in India is not confined to physical or tangible items. Anything with determinable value, exclusive control and transferability qualifies as property. Hence, the crypto assets fall within the legal definition of movable property. Crypto assets पहली बात तो legal definition of movable property में आ गया है. ठीक है, movable property के within the legal definition of movable property, yes, under the general clauses at 1897 and the Bharatiya न्याय संहिता which penalizes misappropriation of property. तो यहाँ पे साफ साफ कोर्ट ने लिख ही दिया है कि कोई भी ऐसी चीज, द कोर्ट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल और टेंजिबल एसेट्स. फिर कोर्ट ने ये कहा कि फिर कोर्ट ने इन्हीं लाइंस के बीच में क्रिप्टो को एक प्रॉपर्टी माना, और फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इसके लिए अगर इसका मिस अप्रोप्रिएशन होगा तो इसके लिए पिनलाइज किया जाएगा अंडर भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, तो हाँ थेफ्ट, तो फिर यहाँ पे क्या है, विच लीगल कंक्लूजन फॉलोज द मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट, थेफ्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी अमाउंट्स टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, एज मेंशन्ड इन द पैसेज. देन द आंसर इज बी. देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट अ राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A इंक्लूड्स लॉफुल ओनरशिप ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, आर्टिकल 300A किस बारे में बात करता है? हमारा राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट होता था, बट अब उसको बाद में मतलब अमेंडमेंट के थ्रू उसको, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा वो अमेंडमेंट था जिसमें फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था, राइट टू मूवेबल, राइट टू प्रॉपर्टी को. ठीक है, तो प्रिंसिपल इज सेइंग दैट अ राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स लॉफुल ओनरशिप ऑफ एनी मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब आर्टिकल 300A के हिसाब से है कि आप एक लॉफुल ओनर हो किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के, किसी जमीन के, कार के, आप एक लॉफुल ओनर हो. ठीक है, फैक्ट्स आर सेइंग दैट द गवर्नमेंट इशूज अ बैन कन्फिस्केटिंग सिटीजन्स क्रिप्टो होल्डिंग्स. ठीक है, गवर्नमेंट एक इशू करती है बैन. इस बैन से क्या होगा कि जितनी भी सिटीजन्स के पास क्रिप्टो होल्डिंग्स है वो सब गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर लेगी. तो विच आर्ग्यूमेंट अलाइंस विद द कोर्ट्स रीजनिंग? सिटीजन्स हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर डिजिटल एसेट्स. स्टेट कैन रेगुलेट बट टोटल कन्फिस्केशन में वायलेट आर्टिकल 300A. क्रिप्टो एसेट्स कैन नॉट बी ओन्ड प्राइवेटली एंड राइट टू प्रॉपर्टी डजंट एक्सटेंड टू इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी डज एक्सटेंड टू इंटेंजिबल एसेट्स, ये ऑप्शन गलत है. क्रिप्टो एसेट्स कैंट बी ओन्ड प्राइवेटली, पैसेज में अभी रिपीट
करके देख लीजिएगा, वहाँ पे ये भी मैंशनड है कि क्रिप्टो एसेट्स कैन बी ओन्ड प्राइवेटली। देन स्टेट कैन रेगुलेट, ठीक है, स्टेट रेगुलेट कर सकता है लेकिन टोटल कन्फेसिकेट नहीं कर सकता बिकॉज इट विल बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 300A, ठीक है। एंड देन सिटीजन्स हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। कोई भी डाउट हो रहा हो, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। बट व्हाट माय मेन एजेंडा इज कि आप लोग यहाँ से बिल्कुल सीख कर जाओ एंड आई विश कि आप पूरा यहाँ से सीख के जाओ, आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मॉक्स में एंड इवन इन द रियल एग्जाम ईजी हो और ऐसा लगे कि आप कुछ पढ़ कर आए हो, ठीक है। Then the next principle is saying that criminal misappropriation occurs when someone dishonestly converts another's property for personal use, ठीक है। criminal misappropriation तब होता है जब कोई दूसरा बंदा dishonestly मतलब with intention, with bad intention कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट क्या करता है, मतलब दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज में लाता है, ठीक है। फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि बी ट्रांसफर्स क्रिप्टो फ्रॉम एज वॉलेट टू हिज ओन विदाउट कंसेंट, तो विच इज करेक्ट। प्रिंसिपल हमारा क्या कह रहा है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन अगर व्हेन समवन डिसऑनेस्टली कन्वर्ट अनदर्स प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। जब कोई दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है। फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि बी ने ट्रांसफर किया क्रिप्टो फ्रॉम एज वॉलेट टू हिज ओन, ठीक है, विदाउट कंसेंट। तो अब क्या क्रिप्टो का ट्रांसफर अपने वॉलेट से मतलब दूसरे के वॉलेट से खुद के वॉलेट में डिसऑनेस्टली करना मिसअप्रोप्रिएशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? यहां पे क्या लिखा हुआ है, द कोर्ट रीजन दैट द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया इज नॉट कन्फाइंड टू, इज नॉट कन्फाइंड। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल या जो एसेट्स को आप छू पा रहे हो, कार, गाड़ी या फिर आपकी जमीन, तो सिर्फ वही एसेट्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर क्रिप्टो को भी प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया था और ये कहा था कि मिसअप्रोप्रिएशन के लिए पीनलाइज होगी जो भी पार्टी करेगा, ठीक है। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन अकर व्हेन समवन डिसऑनेस्टली कन्वर्ट्स अनदर्स प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, तो क्या वहां पे बी ने ये करा, तो क्या विच इज करेक्ट। तो बी कमिट्स मिसअप्रोप्रिएशन सिंस क्रिप्टो इज प्रॉपर्टी, बी hasn't stolen anything since crypto is intangible. Option C is saying that it is only a civil wrong. Option D is saying no offense unless RBI declares crypto legal tender, ठीक है। हाँ, ये बात सच है कि अभी तक क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन क्रिप्टो इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी एज पर द जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। तो अगर क्रिप्टो प्रॉपर्टी है और क्रिप्टो का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, that B commits misappropriation since crypto is a property. Fine. Then the next option देख लीजिए, option A is the correct. Then the next question is saying that the law recognizes ownership of even of non-physical assets if they carry definable value and exclusivity. So facts are saying that C holds NFTs and claim protection, ठीक है। The law recognizes ownership even of non-physical assets if they carry definable value. C hold NFTs and claim ownership protection. तो which inference follows from the same reasoning? अब ये inference based question आ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो NFTs can be recognized as property for legal protection. Only physical property is legally recognized, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों को प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया। डिजिटल आर्ट हैज नो लीगल स्टेटस, ऐसा कुछ नहीं है। देन ऑप्शन डी इज सेइंग दैट ओनरशिप एग्जिस्ट ओनली आफ्टर गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो एनएफटीज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी फॉर लीगल प्रोटेक्शन, दिस इज विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। प्रिंसिपल इज सेइंग दैट लॉ रिकॉग्नाइजेस ओनरशिप इवन ऑफ नॉन फिजिकल एसेट्स, ठीक है, इफ दे कैरी डिफाइनेबल वैल्यू एंड एक्सक्लूसिविटी, ठीक है। तो अब सी एनएफटीज होल्ड करता है, ठीक है, एंड क्लेम ओनरशिप प्रोटेक्शन, कि भाई सी के पास एनएफटीज हैं और वो ओनरशिप प्रोटेक्शन चाहता है। तो क्या इन्फ्रेंस आना चाहिए? तो यस, एनएफटीज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉपर्टी फॉर लीगल प्रोटेक्शन बिकॉज हमारा लॉ ओनरशिप नॉन फिजिकल एसेट्स को भी देता है, ठीक है। द लॉ रिकॉग्नाइजेज ओनरशिप इवन ऑफ नॉन फिजिकल एसेट्स, तो एनएफटी इज अ नॉन फिजिकल एसेट। फाइन। Then the next question is, principle is saying that recognition
of an asset as property does not imply it is legal currency. So facts are saying that D tries to pay rent in cryptocurrency claiming it is a legal property. So which is correct? So option A is saying that landlord must accept it since it's a property. Option B is saying that crypto can't be forced as payment. It's not a legal tender. Option C is saying that refusal amounts to breach of contract, and option D is saying that court would compel acceptance to promote innovation. So yes, crypto is considered as a property but not as a legal tender. So the option B will be the correct one. Crypto can't be forced as payment. It's not a legal tender, though it is a property, not a legal tender. ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था. Fine. So now students, the last question for today. आराम से देख लीजिए, आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अभी तक बहुत अच्छे से करे हैं, तो मेक श्योर कि इसको भी आप एकदम करेक्टली अच्छे से आंसर करो. तो प्रिंसिपल इज सेइंग दैट द जुडिशरी मे इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स टू इंक्लूड न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन कंसिस्टेंट विद legislative intent. Facts are saying that he argues the court cannot stretch definition to cover crypto. Which statement is correct? ये argue करते हैं कि court cannot stretch definition to cover crypto. ठीक है, जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकती स्टैट्यूट्स को. ये हमारा प्रिंसिपल है, कह रहा है कि जुडिशरी में इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स, इंटरप्रेट कर सकती स्टैट्यूट्स को टू इंक्लूड न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, जैसे क्रिप्टो अभी एक न्यू फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है, तो जुडिशरी स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करके उसको भी कर सकती है एज अ प्रॉपर्टी कंसीडर. ठीक है, ई कहता है कि ई आर्ग्यूज दैट द कोर्ट कैन नॉट स्ट्रेच डेफिनेशंस टू कवर क्रिप्टो. ई ये कहता है कि कोर्ट डेफिनेशन को स्ट्रेच नहीं कर सकता क्रिप्टो कवर करने के लिए. ठीक है, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? Judicial interpretation can expand property to cover novel assets if consistent with purpose. Only Parliament can define new property. Option C is saying that courts cannot interpret existing laws beyond physical goods. Option D is saying that recognition of crypto as property is unconstitutional. हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है वही हमें अप्लाई करना है. प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जुडिशरी में इंटरप्रेट स्टैट्यूट, जुडिशरी कर सकती है. तो इनमें से कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा लग रहा है कि जिसमें जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन का जिक्र है? ऑप्शन डी में रिकॉग्निशन ऑफ क्रिप्टो एज प्रॉपर्टी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल गलत. कोर्ट्स कैन नॉट इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग लॉस बियॉन्ड फिजिकल गुड्स, ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंसिपल में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है. ऑप्शन बी सिंग ओनली पार्लियामेंट कैन डिफाइन न्यू प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है जुडिशरी में इंटरप्रेट. ठीक है, तो ऑप्शन ए बसता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कैन एक्सपैंड प्रॉपर्टी टू कवर नॉवल एसेट्स इफ कंसिस्टेंट विद पर्पस. ठीक है, तो नॉवल एसेट्स कंसिडर हो सकते हैं as a property. So students, this was all for today. I hope ki you guys got to learn new things, you guys got to learn new certain things, and definitely these are certain topics which are very much relevant and important for your exam. So do attempt these questions and these passages very properly. Try to watch this video multiple times, recommend it to your close friends as well. In case of any doubt, you can just put that in the comment section, and do follow iQuanta for these informative and useful videos for your CLAT 2026 exam. And we'll be coming regularly with specific topics, specific videos, even more legal current affairs, even from the past months as well. So just let us know in the comment section what you are looking for. If you have any doubt, if you are looking for any course, and you can just comment that, and we'll be more than obliged to help you. Until then, all the very best students. Thank you very much.